રાજ્યમાં બીઝેડ ગ્રુપની જેમ જ પોરબંદરમાં પણ એક કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું અને કૌભાંડ ખુલીને સામે આવ્યું. આ કૌભાંડમાં જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના નામે ચલાવતા એક જ પરિવારના 3 સભ્યો હતા, જેણે પોરબંદરની અંદરથી 650 કરતાં વધુ થાપણદારો પાસેથી લગભગ 10 કરોડ કરતાં વધારેનું ફૂલેકું ફેરવી નાખ્યું છે. અંતે પોલીસે આ તમામ આરોપીઓની 20 દિવસ સુધી તપાસ ચલાવી અને એક બાદ એક આરોપીઓને ટ્રેક કરી ધરપકડ કરી છે. જો કે આ તમામ આરોપીઓની ધરપકડમાં અન્ય રાજ્યની પોલીસની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. ત્યારે કોણ છે આરોપી અને કેવી રીતે આચર્યું હતું આખું આ જલારામ કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ કૌભાંડ, જુઓ અમારા અહેવાલમાં. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ રૂમ ને આપની સાથે હું છું પ્રદીપ. પોરબંદર વાળી પ્લોટ ખાતે જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી ચલાવતા પરિવારના 3 સભ્યો એની સામે ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી અને એ ફરિયાદના આધારે પોરબંદર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. તપાસના શરૂઆતના તબક્કામાં મનન દાવડાને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી લીધો, પરંતુ માસ્ટર માઇન્ડ સંજય દાવડા અને તેની પત્ની સપના દાવડાને ઝડપવા માટે પોલીસે આકાશ પાતાળ એક કર્યા અને અંતે થોડા દિવસો બાદ સપના દાવડાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી. ધરપકડ બાદ પોરબંદર પોલીસને સફળતા તો મળી, પરંતુ એ સફળતામાં હજુ પણ સંજય દાવડાએ પોલીસ પકડથી દૂર હતો. પોરબંદર પોલીસે તેની ધરપકડ માટે દિવસ રાત એક કર્યા, આકાશ પાતાળ એક કર્યા, પરંતુ તેમ છતાંય સંજય દાવડાની એક ભાળ પણ નહોતી મળતી. અચાનક જ સંજય દાવડાને લઈને એક દિવસ એક એવી બાતમી મળી જે ખાનગી બાતમીના આધારે પોલીસે તપાસની શરૂઆત કરીને પોલીસ અયોધ્યા પહોંચી અને અયોધ્યાની અંદર સતત 24 કલાક કરતાં પણ વધારે સમયે તપાસ ચલાવી, પરંતુ ત્યાંથી એ સંજય દાવડા ફરાર થઈ ચૂક્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસને વધુ એક બાતમી મળી અને બાતમી મળતાની સાથે જ યુપી પોલીસને સંજય દાવડાની પાછળ લગાડી. જ્યારે યુપી પોલીસને સંજય દાવડાની પાછળ લગાડી ત્યારે યુપી પોલીસ પણ દંગ રહી ચૂકી કે પ્રયાગરાજની અંદર મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે અને એ જ મહાકુંભની વચ્ચે ગુજરાતનો એક ફૂલેકું ફેરવનાર આરોપી અહીંયા કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યો છે. જો કે યુપી પોલીસે તત્કાલ પોરબંદર પોલીસને જાણ કરી અને પોરબંદર પોલીસે યુપી પોલીસની મદદથી પ્રયાગરાજની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા એ સંજય દાવડાની યુપી પોલીસની મદદથી ધરપકડ કરવામાં આવી. સંજય દાવડાને એમ હતું કે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજની અંદર મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે, એટલે અહીંયા કોઈની નજર નહીં જાય અને અહીંયા કોઈનું ધ્યાન નહીં પડે, એટલા માટે હું અહીંયા મારી કેન્સરની સારવાર લઈ શકું છું. જો કે પોરબંદર પોલીસની નજર નીચેથી તે બચી ના શક્યો અને અંતે તેની ધરપકડ થઈ. પોરબંદરના એએસપીએ આખી આ ધરપકડ અને આખા આ કૌભાંડ સંદર્ભે શું કંઈ કહ્યું એ પણ સાંભળો તમે. इसमें फ्रॉड, ये जो एफआईआर है वो 29 दिसंबर को रजिस्टर हुई है यहाँ पे. तो इसमें फ्रॉड है कि 650 डिपॉजिटर्स है, उसमें पूरा डिपॉजिट्स की 8 करोड़ का डिपॉजिट्स है इसमें. तो इसमें आरोपी है 3 आरोपी है, संजय दावड़ा है और सेकंड है मनन है, सेकंड इज सपना दावड़ा, इनकी वाइफ है, तीसरा है ये मनन दावड़ा. सो मनन का अरेस्ट तभी हुई है जब ही एफआईआर हो गई है, बिकॉज वहाँ पे जो ब्यूटी पार्लर सपना दावड़ा चला रही थी वहीं पे मनन दावड़ा वॉज ऑपरेटिंग देयर, तो उनको उसी टाइम में हम अरेस्ट कर लिया है. जो संजय दावड़ा है, संजय दावड़ा को अभी संजय दावड़ा अक्टूबर से फरारी में है, तो तब से उनके पास फ़ोन भी नहीं था. तो हमारे पास टेक्निकल सोर्स से हमको मिलना जो चाहिए था इन्फॉर्मेशन, वो मिलने की चांस ही नहीं थे. तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की द्वारा है और फैमिली मेम्बर्स, जो अक्यूज़ की फैमिली मेम्बर्स से ये बातचीत जो हो रहा था हर दिन, ये जो संजय दावड़ा ऐसा करता था कि किसी और की फ़ोन लेके यूपी में उनकी फैमिली मेम्बर से बात करता था. तो इसमें हमको ये भी पॉइंट नहीं कर सकते किसकी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. एक बार किसी को आप मोबाइल पूछ सकते हो, 1 मिनट बात करके आप दे सकते हो वापस, तो इसमें आप पॉइंट आउट करने के लिए है भी नहीं. बट जनवरी 1st वीक में हमको इतना पता चला, वो अयोध्या में है. को हमारी टीम कोई गुजसी टॉप की इन्वेस्टिगेशन में वहाँ गई थी, तब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आई थी. तब तो इतना पता था कि ही वॉज इन अयोध्या. तो अयोध्या में जब भी हमको पता चला कि ये बंदा वहाँ पे है, वहाँ का पुलिस को हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है, फ़ोटो भी भेज दिया था कि ऐसे बंदे अगर आपके पास कहीं दिखा भी तो हमको इन्फॉर्म करने के लिए हम ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया है.
उसके बाद एक 13 तारीख को ऐसा हमारे पास कॉल आया था फैमिली मेम्बर्स का पोस्ट का कि उनकी इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा ये संजय दावड़ा एक स्वरूपरानी हॉस्पिटल प्रयागराज में सिविल हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किया है। सो उसके बाद तुरंत 13 तारीख शाम को हमने टीम को यहाँ से भेज दिया था। तो वहाँ हमने 16 तारीख तक पहुँच गए। तो 19 तारीख तक संजय दावड़ा हॉस्पिटल में ही थे। डिस्चार्ज होने के बाद हमारे कस्टडी में हमने ले लिया है। नेक्स्ट डे 20 तारीख को हमने ट्रांसिट रिमांड CGM प्रयागराज से मांग के वहाँ से कल शाम को 21 इवनिंग को हम लेके आए थे यहाँ पे। कितना रिमांड मिला है कोर्ट से और एक क्या इन्वेस्टिगेशन? अभी 5 दिन का रिमांड मिला है। हमने 1 वीक का मांगा था बट हमको 5 दिन का मिला है अभी। तो इसमें 5 दिन में हमको इतना चाहिए होगा कि जो भी उनकी जो डिपॉजिट्स है वो वहाँ कहाँ वो से डिपॉजिट किस किस बैंक में, जो भी इंफॉर्मेशन जो सोर्स ऑफ डिपॉजिट्स और जो लोन किस किस को दे रहा है वो भी हम देखेंगे। और ये सिस्टमेटिकली ऑडिट का भी उनकी ऑडिट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है बिकॉज इन्होंने ऐसा किया था कि 2022 तक इन्होंने ऑडिट करवाया था, उसके बाद 2 साल तक ऑडिट नहीं करवाया था। तो उसके बारे में इंट्रोगेशन भी चलेगी कि क्यों 2 साल तक ऑडिट नहीं हुई है। बिकॉज ऑडिट इज़ मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू RBI नॉर्म्स। तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि कब से, मतलब 2022 से ही इनको पता चल गया कि तो ये डिफ़ॉल्ट होने वाली है और जो भी है इसके बारे में हमारी ऑडिट के रिलेटेड मोस्टली होगी कि ऑडिट पहले कैसा होता था, वो कितना न्यूट्रल था, वो इतना ट्रांसपेरेंट था, इतना क्लियर था, ऑडिट किस तरह की वो करते थे वो भी हम पूछेंगे। और लोन्स और डिपॉजिट्स जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजंस कैसे लेते थे, किस हिसाब से वो डिपॉजिट लेते थे और किस हिसाब से आप लोन्स दे देते, वो भी हम चेक करेंगे। खास करके मैडम उसको कोई बीमारी थी, कैंसर ऐसा कुछ बीमारी है उसके दावड़ा को? अभी हम उनकी बेटी से रिपोर्ट्स मंगवाया था, मेडिकल रिपोर्ट्स। लेटेस्ट रिपोर्ट्स 2022 का ही है, 2022 का ही है। उस रिपोर्ट्स में लिवर कैंसर का डायग्नोसिस हुई है। वो अब तब तो सेकेंड स्टेज में है, अभी थोड़ा बहुत एडवांस भी हो गया होगा। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसा था कि एडवांस स्टेज में है ही ऐसा। मैडम जितने भी डिपॉजिटर्स है वो सब पैसे वाले हैं या कोई छोटे मोटे सब्जी मंडी वाले हैं? पैसे वाले नहीं है ये। इसके बारे में मैंने रीना पटेल मैडम है, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपको पता ही होगा, ग्रुप 1 ऑफिसर हियर इन गुजरात पोरबंदर। सो मैडम से मैंने बात किया है। मैडम ये मॉडस ऑपरेंडी मुझे ये बताई थी कि जिससे ये डिपॉजिट ले रहे थे वो लोग दे आर वेरी मार्जिनलाइज्ड, वेरी वल्नरेबल। वो जो मतलब स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं और ऐसा वेरी वीक बैकग्राउंड से जो आते हैं उनसे ही पैसे लेना कि मतलब उनको मे बी डिसीव करने में उसको आसान होता था। सो दोज आर द पीपल जहाँ से इन्होंने डिपॉजिट लिया था। तो दे आर नॉट पैसा आदमी नहीं है वो लोग, दे आर वेरी मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल पीपल। हाँ, वाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग वाइफ की रोल इसमें इतना दिख नहीं रहा, बट शी इज नेम्ड टू बी डायरेक्टर ऑफ द जलाराम कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो उनकी रोल अभी बाकी हमको मैक्सिमम इनकी ही रोल दिख रही है इसमें। तो उनकी रोल नाम के वास्ते ये वो हम एस्टैब्लिश करना है कि थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन कि कोई बोर्ड मीटिंग में वो हाजिर है कि नहीं, उसकी रोल क्या है बोर्ड मीटिंग्स में, डिसीजन मेकिंग में, वो देखना है। उसके पास 8 करोड़ से भी ज़्यादा रकम होगी तो उसने कहाँ खर्च किया, ऐसा कुछ बेसिकली कुछ सामने आया ऐसा कुछ? अभी इसी के लिए हमने पूरी फैमिली का बैंक स्टेटमेंट्स और जलाराम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम के ऊपर भी एक बैंक अकाउंट है, उसके बारे में भी हम लीड बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि इसके बारे में जितने भी बैंक अकाउंट्स हमको चाहिए। इस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स तो धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे पास। आई थिंक 4-5 बैंक से आया है कि नहीं अकाउंट्स का, जो भी हम एनालाइज करना पड़ेगा इसमें। तो जब तक पूरा बैंक स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे तब तक हमको ये पता नहीं होगा कि फंड फ्लो कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, वो भी देखना है हमको। जितने भी डिपॉजिटर्स है उसको किस तरह से वो बोल रहा था कि आप डिपॉजिट करो तो इतना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन FIR में भी मेंशन हुई है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स जो इंटरेस्ट देती है उसके एवरेज है 12%। तो इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था डिपॉजिटर्स को कि आपको 18% तक मिल सकती है। तो दिस इज़ द रीज़न लाइक वाई पीपल कैन कम फॉरवर्ड कि अगर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आई विल इन्वेस्ट इन यू ओनली, आई विल डिपॉजिट विथ यू ओनली। सो दैट इज़ द मतलब वेदर यू आर इन ए पोजिशन, आपकी दे सकते हैं कि नहीं, वो एनालिसिस करने के बिना रिसीव करने के लिए ऐसा
ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। जो टीम गई थी प्रयागराज, तो कितनी टीम थी और किस तरह से पूरा ऑपरेशन किया उसको? इसमें बेसिक कितना इन्फॉर्मेशन था, हमको कंफर्मेशन आ गया है 13 तारीख को ही कि ही इज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल। स्वरूपरानी हॉस्पिटल में एडमिट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन आ गई पुलिस से। तुरंत वहाँ का SHO से मैंने बात किया है कि जब तक हमारा टीम वहाँ पहुँचेगा तब तक वहाँ का गार्ड, पुलिस गार्ड को रखने के लिए। तो हम 13 तारीख यहाँ तुरंत शुरू गई यहाँ पे, 16 तारीख प्रयागराज पहुँच गए। तब तक UP का पुलिस गार्ड थे वहीं पे। कहाँ पे? प्रिजन वार्ड है, जनरल वार्ड ऑफ स्वरूपरानी हॉस्पिटल में ही। जब हमारे स्टाफ यहाँ से गए, 3 लोग गए थे, एक PSI और 2 पुलिस कांस्टेबल्स। जब 16 तारीख वो गए थे तब से ये हमारे पुलिस स्टाफ हॉस्पिटल के पास ही रहते थे। वो गाड़ी में ही सोते थे, गाड़ी में ही खाते थे, सब कुछ गाड़ी में ही करते थे। बिकॉज वहाँ से अगर कोई जा रहे हैं तो हमको पता नहीं कि, बिकॉज दैट इज़ अ जनरल वार्ड, दैट इज़ नॉट इवन ए प्रिजन वार्ड। एंड वहाँ का कुंभ मेला चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पुलिस से भी इतना भी ज़्यादा मांग सकते हैं, आप आ जाओ, आप डिप्लॉय कर दो। तो हमारी कैदी है और काम हमारे अक्यूज है, तो हमें ध्यान रखा है जब तक उसकी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो डिस्चार्ज होने के बाद उसके बाद मेडिकल करवाया था। 19 तारीख को डिस्चार्ज हुई उनकी, तो उसके बाद मेडिकल करवाया था। 20th मॉर्निंग कोर्ट CGM प्रयागराज के सामने हमने प्रोड्यूस किया है ट्रांजिट रिमांड के लिए। उसके पास कोई चीज बरामद हुई है या अभी के लिए जब हम कस्टडी में लिया था तब तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज उसके पास फ़ोन भी नहीं है, पैसा होने की चांसेस है, बिकॉज जब यहाँ से फरारी हो गई है वो सितंबर लास्ट वीक में पूरा विथड्रॉ करके ही चला गया। तो लास्ट स्टेटमेंट ऑफ जलाराम क्रेडिट सोसाइटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, सितंबर लास्ट तक 3-4 लाख, आई थिंक 6-7 लाख तक उन्होंने डिपॉजिट विथड्रॉ करके, उसके बाद कुछ है ही नहीं जलाराम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવમાં લગભગ 150 સ્થાપનદારોએ પોતાના જીવનભરની કમાણીનું રોકાણ કર્યું હતું ને જેમાં કુલ 7 જેટલા લોકોએ ફરિયાદ કરી હતી। ફરિયાદ થતાની સાથે જ માસ્ટરમાઇન્ડ સંજય દાવડા, પુત્ર મનન દાવડા અને પત્ની સપના દાવડાની સામે ફરિયાદ જ્યારે નોંધાઈ હતી તેમાં સંજય દાવડા અને તેની પત્ની સપના દાવડાએ ફરાર થઈ ચૂક્યા હતા અને મનન દાવડાની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી। જો કે હવે આ તમામ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે અને ધરપકડ બાદ હવે આખી આ ઘટનાની અંદર પોરબંદરની જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીની દ્વારા કેટલા કરોડનું ફૂલેકું ફેરવવામાં આવ્યું હતું, પોલીસે તેની તપાસ હાથ ધરી છે। જો કે હવે આ તપાસની અંદર પોલીસને સંજય દાવડાના 5 દિવસના રિમાન્ડ પણ મેળવ્યા છે અને આ 5 દિવસના રિમાન્ડની સાથે જ પોલીસે તમામ એ પરિવારના તમામ સભ્યોના બેંક એકાઉન્ટ અને સાથે જ જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ બેંકની એકાઉન્ટની પણ વિગતો મેળવીને તપાસની શરૂઆત કરી છે। જો કે અત્યાર સુધીમાં 650 કરતાં પણ વધુ લોકોના રૂપિયા આ સોસાયટીમાં રોકાયેલા હોય તેવી માહિતી મળી છે, જેમાં લગભગ 8 કરોડ જેટલી માતબર રકમ પોલીસ પાસે આવી ચૂકી છે, એટલે કૌભાંડનો આંકડો આવી ચૂક્યો છે। પરંતુ હજુ પણ આ કૌભાંડ એ ખૂબ ચતુરાઈપૂર્વક આચર્યું હતું કે જેમાં કોઈ મોબાઈલ કે આધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કર્યા વગર છેલ્લા 2 વર્ષથી આ જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવનું ઓડિટ પણ નથી કરાવ્યું, જેથી પોલીસે હવે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે અને આ કેસમાં કુલ કેટલી રકમનું કૌભાંડ થયું છે તેની તપાસ કરી રહી છે। જેમાં પોલીસને પણ આશંકા છે કે આ કૌભાંડ 10 કરોડ કરતાં પણ વધુ નીકળી શકે, પરંતુ હવે જોવાનું રહેશે કે આખી આ ઘટનામાં સંજય દાવડાની પૂછપરછની અંદર શું કંઈક ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે। આપનું શું માનવું છે પોરબંદરની જલારામ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના કૌભાંડને લઈને? અને ખાસ અમારા અહેવાલ સંદર્ભે આપનું શું માનવું છે તે ખાસ અમારા કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવજો। જોતા રહેજો ન્યૂઝરૂમ। નમસ્કાર।